Good morning, everyone. This is your English class, and today we are going to understand our second chapter, Children of India. This chapter we are going to study today. So, for this, you are advised that you should open the page number 10. So, let's start to read this chapter. Before reading the chapter, I'm just going to make you understand the summary of this chapter so that every point will be crystal clear in your mind when you will read the chapter. So, chapter name is Children of India, written by Ruskin Bond. So, in this chapter, author tells us about condition of Indian school-going children. He says, usually he stands near the window of his home and sees the children going to school. Actually, author lives on a hill. Then he describes about a boy first. The boy name is Ranbir and he is just 10 years old. Ranbir walks 4 miles every day for going to school because he lives down the hill. At that time, no school bus was provided there. Ranbir usually brings the cucumber for him, means for author, from his father's field. Then, for the sake of cucumber, the author used to give him some amount. By that amount, Ranbir used to buy school books and other things. Then author talks about a girl named Bindra. Bindra is just 14 years old and she talks a lot with her companions. Bindra also helps her parents in the fields. At that time, girls did not used to go to school, but now almost girls go to school. Then he tells about winter days. He says that when Ranbir faced a lot of problem in the winter days because the duration of day is very short in winter days. Ranbir has to cross the woods fast before the sunset because usually there's a dark very soon in the winter days. Then the author states about many Indian children. He says that many Indian children have to face different problems for going to schools. He says school children of Rajasthan have to face desert storms. Children of Kashmir and Ladakh have to face blizzards. Because in remote areas there is no school bus. Then he tells about Ganjam district of Odisha. In the absence of bridge, they have to cross the river by swimming. So basically, he tells about the condition of school-going children, what type of problems they have to face. Then he also reveals that across the India, almost every child helps his or her parents in their livelihood. Only a few are getting good school facilities. He also tells there are many good private institutions which provides the first class education. Then he tells about the census. He says that according to census, 50% population is school going children. So in the last, he tells again that I stand near my window seeing the children going somewhere for their better future. So this is all about this chapter. It's a summary of this chapter. Now we will read this chapter line by line. Okay, start. So we need to start from page number 10. Let's warm up first. Compare the commute to school in urban areas to that in remote rural areas. Look up the meaning of the word commute. So in this, author says that we should compare the commute of school-going children who live in cities and who live in the remote rural areas. And secondly, we need to look out the meaning of commute. Commute means to travel
from your home to from your home to your job point or your school, means हर रोज कहीं आना जाना, that's called commute, right? Now let's understand the chapter. They pass me every day on their way to school, boys and girls from the surrounding villages and the outskirts of the hill station. So Uthar is standing just near his window. Uthar जो है अपने घर की विंडो के साथ में खड़ा हुआ है, वो एक हिल पे रहता है और स्कूल में जाते हुए बॉयज को और गर्ल्स को हमेशा देखता है. And there are no school buses playing for these children. They walk, for many of them it's a very long walk to school. फिर वो कहते हैं कि इन बच्चों के लिए कोई भी स्कूल बसेस नहीं यूज की जाती, उनको एक लंबा पाथ क्रॉस करना पड़ता है स्कूल में जाने के लिए. Ranbir, who is 10, has to climb mountain from his village 4 miles distant and 2000 feet below the town level. So फिर वो उत्तर एक लड़के के बारे में बताता है जिसका नाम रणबीर है, केवल 10 साल का है, उसको हर रोज माउंटेन पे चढ़ना पड़ता है, लगभग 4 माइल्स उसको जाना पड़ता है क्योंकि जो उसका घर है वो हिल से 1000 फीट नीचे, 2000 फीट नीचे है. He comes in all weathers, wearing the same pair of cheap shoes until they have almost fallen apart. वो हर तरह के मौसम में, वेदर में वहां आता है स्कूल में और एक सेम पेयर ऑफ चीप शूज पहन के आता है, सस्ते से शूज पहन के आता है और तब तक उनको पहन के रखता है जब तक वो अच्छे से पूरी तरह फट ना जाए. रणबीर इज अ चीयरफुल सोल. वो एक चीयरफुल सोल है, यानी कि खुश रहने वाला लड़का है. He waves to me whenever he sees me at my window. जब कभी वो मुझे मेरी विंडो पे देखता है, मैं अपनी विंडो के पास खड़ा होता हूँ, तो रणबीर मुझे हमेशा वेव करता है, हाथ हिलाता है. Sometimes he brings me cucumber from his father's field. कभी कभी वो मेरे लिए एक cucumber भी लेके आता है, खीरा भी लेके आता है अपने फादर के फील्ड में से, खेतों में से. I pay him for the cucumbers. He uses the money for books or for small things needed at home. और मैं उस cucumbers के लिए उसे पे करता हूँ, कुछ पैसे देता हूँ और वो रणबीर उस पैसे से अपनी स्कूल की बुक्स खरीदता है या फिर और कुछ घर के सामान के लिए वो पैसे यूज करता है. Many of the children are like रणबीर. बहुत सारे बच्चे रणबीर की तरह ही हैं, गरीब हैं, यानी कि पुअर, गरीब हैं, but slightly better off than what their parents were at the same age. परंतु कुछ बच्चे उससे बेटर है, यानी कि कुछ थोड़े ज्यादा अमीर हैं, बिल्कुल गरीब है. They can't attend the expensive residential and private schools. वो सारे बच्चे रेजिडेंशियल और प्राइवेट स्कूल को नहीं अटेंड कर सकते, नहीं ज्वाइन कर सकते. That about here, जो भी स्कूल वहां पर हैं, but must go to the government aided schools with only basic facilities. परंतु वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं जहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज मिलती हैं. Not many of their parents manage to go to school. और उनमें से, उन बच्चों में से बहुत सारों के पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाए. They spent their lives working in fields or delivering milk. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खेतों में काम करके व्यतीत कर दी है और इन द हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन पर मिल्क को डिलीवर करने में उन्होंने स्पेंड कर दी. द लकी वंस गोट इनटू द आर्मी. जो लकी होते हैं वही सिर्फ आर्मी को ज्वाइन करते हैं, आर्मी में जा पाते हैं. परहैप्स रणबीर विल डू समथिंग डिफरेंट व्हेन ही ग्रोस अप. फिर ऑथर कहता है कि शायद रणबीर कुछ डिफरेंट करेगा, कुछ अलग करेगा इन सभी से जब वो बड़ा हो जाएगा. He is yet to see a train, but he sees planes flying over the mountains almost every day. उधर कहता है कि उसने अभी तक ट्रेन नहीं देखी है, परंतु फिर भी वो प्लेन्स देखता है जो माउंटेन्स के ऊपर से फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, हर रोज वो उन्हें देखता है. How far can a plane go? He asks. वो पूछता है, अक्सर रणबीर पूछता है कि जो ये प्लेन होते हैं कितनी दूर तक जा सकते हैं. All over the world.
I tell him. उत्तर कहता है कि मैं उसे बताता हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हैं. Thousands of miles in a day. एक दिन में thousands miles क्रॉस कर सकते हैं. You can go almost everywhere. तुम इन प्लेन्स की हेल्प से कहीं पर भी जा सकते हो, लगभग हर जगह जा सकते हो. I'll go round the world one day. He waves. Sorry, was. तो वो एक कसम खाता है. वो कहता है कि मैं एक दिन पूरे वर्ल्ड की सैर करूंगा, पूरे वर्ल्ड पे जाऊंगा. I'll buy a plane and go everywhere. मैं एक प्लेन को बाय करूंगा, खरीदूंगा और हर जगह जाऊंगा. And maybe he will, और शायद वो ऐसा करेगा. He has a determined chin and a defiant look in his eyes. उसकी एक जो चिन्ह है, उसका जो फेस है, इस तरह की चिन्ह दिखाई देती है कि उसकी चिन्ह से लगता है कि उसका निश्चय दृढ़ है. Up to the few years ago, very few girls in the hills or in the village of the India went to school. उस समय तक, कुछ साल पहले, उस समय तक बहुत ही कम गर्ल्स ऐसी थी जो स्कूल जाया करती थी. They helped in home until they were old enough to be married, which wasn't very old. तो तब तक घर में काम करती थी जब तक शादी की उनकी उम्र नहीं हो जाती थी. शादी की उम्र होना भी कोई ज्यादा उम्र नहीं होती थी. But there are now just as many girls as there are boys going to school. But अब समय बदल गए हैं, जितने बॉयज स्कूल जाते हैं उतनी गर्ल्स भी स्कूल जाती हैं, यानी कि हर कोई स्कूल जाता है. Next part. Bindra is something of an extrovert, a confident 14-year-old who chatters away as she hurries down and road with her companions. तो उत्तर कहता है कि जो बिंद्रा है वो एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट मतलब एक ऐसी गर्ल, एक ऐसा पर्सन जो दूसरे से बात करने में फ्रैंक हो, उसमें शाइनेस थोड़ी कम हो. तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और वो 14 इयर्स ओल्ड है और लगभग अपने फ्रेंड से चैटर करती रहती है जब भी वो रोड को क्रॉस करती है. Her father is a forest guard. उसके जो फादर हैं फॉरेस्ट गार्ड हैं and knows me quite well, और मुझे अच्छे से जानते हैं. I meet him on my walks through the Deodar woods behind Landor. तो लैंडोर एक जगह का नाम है, वहां पे देवदार के जो जंगल हैं, कहते हैं कि जब मैं उनको पास करता हूँ अक्सर मुझे वहां पे मिलते हैं, उसके फादर मिलते हैं. And I had grown used to seeing Bindra almost every day. When she did not put in an appearance for a week, I asked her brother if anything was wrong. तो मैं लगभग हमेशा, वो उत्तर कहता है कि बिंद्रा को देखता हूँ जब वो यहाँ से गुजरती है, तो जब वो मुझे कुछ दिनों तक नहीं दिखाई देती तो मैं अक्सर उससे भाई से पूछता हूँ क्या सब कुछ ठीक है ना. Oh, nothing, he says. She is helping my mother cut grass. Soon the monsoon will end and the grass will dry up. So we cut it now and store it for cows in winter. तो वो कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है. जब वो उससे पूछते हैं कि क्या बिंद्रा ठीक है, बिंद्रा क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो वो पूछते हैं कि नहीं, वो खेतों में काम कर रही है, वो घास काट रही है क्योंकि मानसून अब जल्दी खत्म हो जाएगा तो घास सूख जाएगा, तो हमने अपने काउस के लिए वो घास को विंटर के लिए बचा के रखना है, इसलिए वो मेरी मदर की हेल्प कर रही है. एंड वाई आरंट यू कटिंग ग्रास. तो अक्सर उसके भाई से पूछते हैं कि तुम घास क्यों नहीं काटते हो. Oh, I have a cricket match today, he says, and hurries away to join his teammates. Unlike his sister, he puts pleasure before work. तो उधर जब उससे पूछता है कि तुम घास क्यों नहीं काटते, तो अक्सर वो कहता है कि मेरा आज क्रिकेट मैच है, और ऐसे कह के वो जल्दी से अपने टीममेट्स को ज्वाइन करने के लिए उनके पास चला जाता है. फिर वो कहता है कि अपनी बहन से वो बिल्कुल अलग है, वो इस तरह के प्लेजर को एंजॉय करता है, उसकी बहन ज्यादा खेतों में काम करती है. राइट. So one difficult word is written here. Let's understand this. Extrovert, an energetic, happy person who likes being with and talking with others. एक ऐसा energetic person जो खुश रहता हो और दूसरों की कंपनी उसको अच्छी लगती है, दूसरे के साथ घुलना मिलना उसको पसंद हो. That is called extrovert. Next part, next page. As winter approaches and the days grow shorter, though children who live far away must quicken their pace in order to get home before dark. Ranbir and his friends find the darkness has fallen before they are halfway home. तो उत्तर कहता है कि जब कभी विंटर आती है
तो दिन का टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से जो बच्चे घर स्कूल से बहुत दूर रहते हैं उनको थोड़ा जल्दी चलना पड़ता है, स्पीडली चलना पड़ता है, ताकि अंधेरा होने से पहले वो घर पहुंच जाए। फिर वो कहते हैं कि जब वो उसको रणवीर उसके फ्रेंड जब वो विंटर में जाते हैं तो अक्सर उनको आधे रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। What is the time, uncle? He asked as he trudged up the steep road past ईवी कॉटेज। जब वो ईवी कॉटेज के पास से गुजरता है, एक स्टीप ढलान वाला रोड जो होता है वहां से गुजरता है, तो अक्सर वो टाइम पूछता है, अंकल को, किसी अंकल से पूछता है कि व्हाट्स द टाइम। इट इज डार्क एट 6 and by then Ranveer likes to be out of the deodar forest and on the open road to the village. लोग कहते हैं कि लगभग 6 बजे और उसके आसपास अंधेरा हो जाता है और रणवीर चाहता है कि वो उस फॉरेस्ट में से, जंगल में से, देवदार के जो पेड़ हैं, उसका जंगल है, उसमें से फटाफट बाहर निकल के गांव के रास्ते पे आ जाना चाहता है अंधेरा होने से पहले, 6 बजने से पहले। The moon and the stars and the village lights are sufficient, but not in the forest, where it is dark even during the day. तो कहते हैं कि जो मून की लाइट है, स्टार्स की लाइट है और विलेज की जो लाइट है, वो आने जाने के लिए उतनी रोशनी मेरे लिए काफी है। बट जो फॉरेस्ट में वो रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे अंधेरा रहता है, इसलिए मैं फटाफट उसको दिन में ही पार करना चाहता हूँ। And silent flying up of bats and flying foxes or the eerie hoot of an owl can be a little disconcerting for the hardest of the children. तो कहते हैं कि जब मैं वुड्स में से गुजरता हूँ तो वहां पे जो पैट्स जो होते हैं, बैट्स जो होते हैं, सॉरी, चिमगादड़ जो होते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस, ये भी बैट्स को ही बोलते हैं। इनकी जो फेस होता है वो फॉक्स की तरह होता है, इसलिए इनको फ्लाइंग फॉक्सेस बोलते हैं। और जो उल्लू की आवाजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है, डरा देने वाली होती है, किसी भी सख्त तरह के बच्चों को भी, यानी कि जो बच्चे नहीं डरते उनको भी ये डिस्टर्ब कर देती है, डरा देती है। यूजुअली रणबीर हैज द कंपनी ऑफ अदर बॉयज and they sing most of the way, for loud singing by a small boys will silence owls and pigeons away the forest. तो कहते हैं कि रणबीर कहता है कि लगभग ज्यादातर ऐसा होता है कि रणबीर कुछ बच्चों के साथ से वहां से फॉरेस्ट में गुजरता है और वो बच्चे सिंग करते हैं जाते हुए, ठीक है, ताकि वो आउल्स को चुप करवा पाए, उनसे ना डरे। फॉरेस्ट में जो आउल्स होते हैं, ऐसा करने के लिए वो सिंग करते हैं, गाना गाते हैं। एंड डेमंस होते हैं शैतान जो होते हैं जंगल के, उनसे वो बच पाए, उनसे ना डरे, ऐसे इसलिए वो जाते हुए या आते हुए गाना गाते हैं। वन ऑफ देम प्लेज अ फ्लूट, एक फ्लूट भी बजाते हैं, एक बांसुरी भी बजाते हैं। एंड फ्लूट म्यूजिक इन द माउंटेन्स इज ऑलवेज इंचांटिंग, और जो फ्लूट म्यूजिक है वो माउंटेन्स पर हमेशा सभी को पसंद आता है, सभी को अच्छा लगता है। Not only in the hills but all over the India, children are constantly making their way to and from school in conditions that range from dust storms in the Rajasthan desert to blizzard in the Ladakh and Kashmir. वो कहता है कि ना केवल हिल्स पे, पूरी इंडिया में सभी बच्चे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, सबकी कंडीशन अलग अलग है। राजस्थान में जो बच्चे हैं उनको डेजर्ट को पार करना पड़ता है जहाँ पे बसेस नहीं होती। लद्दाख में और कश्मीर में उनको ब्लिजार्ड्स जो होते हैं, जो बर्फीले तूफान होते हैं, उनको वो क्रॉस करने पड़ते हैं। तो सभी बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम है, सभी बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जहाँ पे बस की फैसिलिटीज नहीं होती। In the large towns and cities, there are school buses, but in the remote rural areas, getting to school can pose a problem. तो कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, टाउन में, वहां पे क्या होते हैं, स्कूल बसेस होती हैं आने जाने के लिए, परंतु जो गांव दूर दूर बसे हुए हैं वहां पे स्कूल बसेस नहीं होती स्कूल में पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। Most children are more than equal to any obstacles than any rise. लेकिन सब बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है स्कूल जाने के लिए। लाइक दोज यंगस्टर्स इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा की बात करते हैं जहाँ पे गंजम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, in the absence of a bridge, they swim or wade across the Dhanai River every day in order to reach their school. तो कहते हैं कि वहाँ पे उड़ीसा में जो गंजम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो स्कूल जाने के लिए वह धनाई रिवर रास्ते में आती है, उस पर ब्रिज नहीं है, उस पर कोई पुल नहीं है, इसकी वजह से बच्चों को उनको क्रॉस करना पड़ता है, चल कर या स्विम करके तब स्कूल जाना पड़ता है।
I have picture of them in my scrapbook. मेरे scrapbook में उसकी picture भी है. Holding books or a statue aloft in one hand, they do the breaststroke and dog paddle with the other, or from a chain and help each other across. तो बुक्स को अपने बैग को अपने हाथ में ऊपर उठाते हैं और ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं. ब्रेस्ट स्ट्रोक एक स्विमिंग के स्टाइल को बोलते हैं. या फिर डॉग पैडल करते हैं. डॉग पैडल भी एक स्विमिंग का स्टाइल है. तो स्विम करके उसको क्रॉस करते हैं या एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाकर एक दूसरे की हेल्प कर कर उस रिवर को क्रॉस करते हैं. राइट. Wherever you go in India, you will find children helping out with the family source of livelihood. फिर तो कहता है कि इंडिया में आप जहाँ कहीं भी जाओगे, हर जगह आपको इस तरह के बच्चे मिलेंगे जो आजीविका कमाने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. Whether it be drying fish on the Malabar coast or gathering saffron birds in the Kashmir or grazing camels and cattle in the village in Rajasthan or Gujarat. तो वो कहते हैं किसी भी तरह की हेल्प बच्चे करते पाते हैं अपने पेरेंट्स की, चाहे वो मालाबार से फिश को ड्राई करना हो या सैफ्रॉन यानी केसर के बर्ड्स को निकालना हो कश्मीर से, या फिर ग्रेजिंग करना हो, चराना हो कैमल्स को, कैटल्स को राजस्थान के गाँव में या फिर गुजरात के गाँव में. तो हर जगह बच्चे जहाँ पे बस फैसिलिटीज नहीं होती, ज्यादातर ऐसे बच्चे गरीब बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. Only the more fortunate can afford to send their children to English medium private or public schools, and those children really are fortunate. Of some of these institutions are excellent schools, as good and often better than their counterparts of the Britain of the USA. तो कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, और वो बच्चे सच में ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो वाकई में ही फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज यानी कि एजुकेशन देते हैं, और वे इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे ब्रिटेन और यूएसए में फॉलो किया जाता है. यानी कि अच्छे स्कूल में जाते हैं. कुछ ऐसे फॉर्चून बच्चे भी होते हैं, भाग्यशाली बच्चे भी होते हैं. Whether it is Ajmer or Bengaluru, New Delhi or Chandigarh, Kanpur or Kolkata, the best schools set very high standards. तो वो कहते हैं कि चाहे वो अजमेर हो, बेंगलुरु हो, न्यू दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, कानपुर हो, कोलकाता हो, कोई भी शहर हो, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अच्छे स्कूल बन गए हैं. The growth of a prosperous middle class has led to an ever increasing demand for the quality education. जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने एजुकेशन की डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके एरिया में अच्छे स्कूल खुलें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उनके बच्चों को. बट एज प्राइवेट स्कूल प्रोलिफरेट स्टैंडर्ड सफर टू. जैसे ही प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड हो रहा है वो कम हो रहा है. यानी कि स्कूल तो बढ़ रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, परंतु उनका स्टैंडर्ड कम हो रहा है, अच्छी फैसिलिटीज अच्छी एजुकेशन कम मिल रही है. And many parents must settle for the second rate. और बहुत सारे पर्सन को, बहुत सारे पेरेंट्स को वो सेकंड रेट वाला यानी कि कम स्टैंडर्ड वाला वो वाले स्कूल को ऑप्ट करने पड़ते हैं, चूज करने पड़ते हैं. The great majority of our children still attend schools run by the state and municipality. तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ऐसे स्कूल में जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा या म्युनिसिपैलिटी के द्वारा चलाए जाते हैं. These vary from good to bad to the ugly, depending on how they are run and where they are situated. तो ये स्कूल कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा गंदे होते हैं. ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन इनको चला रहा है और ये कहाँ पर स्कूल है. A classroom without windows or with a roof that lets in the monsoon rain is not uncommon. यानी कि ऐसे स्कूल जहाँ पर, ऐसे क्लासरूम जहाँ पर विंडो ही नहीं होती और छत होती है और वहां पर मानसून यानी कि बरसात अंदर आ जाती है, तो ऐसे स्कूल अनकॉमन है. यानी कि बहुत जगह ऐसे पाए जाते हैं, नॉट अनकॉमन है. यानी कि अक्सर ऐसे स्कूल पाए जाते हैं जहाँ पे क्लासरूम में खिड़कियां ही नहीं है और बरसात का पानी अंदर आ रहा है. इवन सो चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट communities learn to live and grow together. Hardship makes brothers of us all.
तो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, फिर भी वो साथ में रहना सीख लेते हैं, साथ में बड़े होना सीख लेते हैं, मुसीबतों का सामना करना सीख लेते हैं और एक दूसरे के भाई बन जाते हैं, भाईचारा निभाते हैं। The census tells us that 2 in every 5 of the population is in age group of 5 to 15। तो सेंसस जो है, जो जनगणना है, लोगों की जब जनगणना होती है तो वो हमें बताती है कि 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो 5 से 15 की एज में है, यानी कि 5 से 15 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं अक्सर, तो 5 में 2 पॉपुलेशन में 2% तो ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग है। Almost half our population is on the way to school। So उत्तर कहते हैं कि इसका मतलब है कि हाफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो स्कूल के रास्ते में, यानी कि वो स्कूल जाते हैं। And here I stand at my window watching some of them pass by, boys and girls, big and small, some scruffy, some smart, some mischievous, some serious, but all going somewhere, hopefully towards a better future। तो कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पे विंडो के पास खड़ा हूँ, सभी स्कूल जा रहे हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े गंदे से हो गए हैं, कुछ स्मार्ट हैं, कुछ शरारती हैं, कुछ बहुत ही सीरियस हैं, बट हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है और अपने बेटर फ्यूचरमेंट की तरफ कुछ जा रहे हैं, अच्छे फ्यूचर की तरफ, बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ सम डिफिकल्ट वर्ड्स मोर आर रिटन हियर, लेट्स अंडरस्टैंड देम। hardship means suffering, means कोई मुसीबत, किसी से परेशान होना। Census means the official process of counting and population of a country and gathering information about people। सेंसस का मतलब होता है लोगों को काउंट करना, ये इसको हम बोलते हैं हिंदी में जनगणना। नेक्स्ट, scurfy means untidy, shabby, means मैला कुचैला या गंदा, right? So this is all about this chapter। So dear student, now if you want to ask any question regarding this chapter, then